Hello students, how are you? So, in the previous part of this chapter, that is chapter number 3, pair of linear equation in two variables, we have discussed exercise 3.1. Okay? In that part also, students, I told you that how many possibility can be possible when two lines lie in a plane. I told you three possibility, that was intersecting lines, second was your parallel lines, and third was coincidence lines. Okay? Now children, after covering exercise 3.1, we will move up to our next topic, that is solution of a pair of linear equations in two variable. Students, you have studied how to calculate a solution of a linear equation in two variable. You know, if a equation x plus y equal to 7 is given, you can take out as many solution as you want. But student, it is the only single equation now. Now we will discuss solution of a pair of linear equation in two variables. So see here, I told you whenever you have to write a pair of linear equation in two variable, the general form of the equation was, let two equation such as a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and second equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. See, these two are the pair of linear equations. So in this case, we have to find the solution of the pair of linear equations. So in that case, what we will do, we will take the value of x and y such that when we will put the value of x and y in these two equations, the equation will satisfy. Okay, suppose x plus y equal to 2 and x minus y equal to 4, sorry, wait a minute, not this. Suppose student, x plus y equal to 5 and x minus y equal to 3. Suppose I have taken this, that x plus y equal to 5 and x minus y equal to 3. So we have to take that value of x and y so that when we will put the value of x and y in both the equation, both equation will satisfy. So solution of a pair of linear equation is nothing but the value of x and y such that which satisfy the above equation. So what will you write? The solution of a pair of linear equation the solution of a pair of a linear equation is nothing but the values of x and y which satisfy both the इक्वेशन. कहने का ये मतलब है कि जब भी आप दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो हमें उसमें, क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों इक्वेशन में x भी है, दोनों इक्वेशन में y भी है, तो हमें x और y की वह वैल्यू लेनी है जिसको अगर दोनों इक्वेशन में पुट किया जाए तो वो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे. ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट the value of x and y which satisfy the
बोथ द इक्वेशन। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप इतना जानो कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन x और y की वह वैल्यू होती है जो कि दोनों इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई, विच सेटिस्फाई द बोथ द इक्वेशन। ओके, तो इसी से स्टूडेंट हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन के कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने का फर्क पता चलता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर व्हाट इज कंसिस्टेंट एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, सो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर आपको दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल जाए तो उस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, और अगर आपको दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना मिले तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, सो आफ्टर नोट डाउन दिस थिंग आई विल टेल यू द कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आप ये नोट कर लिए होंगे आई थिंक। अच्छा, मान लो स्टूडेंट आपके पास सपोज यू हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दोबारा दूसरा इक्वेशन क्या लिखा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको जब मैं कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसे और भी एक चीज बोलते हैं, सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का दो सिस्टम होता है, एक होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो वर्ड कंसिस्टेंट है और जो वर्ड इनकंसिस्टेंट है, ये दोनों वर्ड लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मैं इस लीनियर इक्वेशन को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉल्यूशन। पहला है कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट, और दूसरा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है क्या स्टूडेंट, तो देखो जरा, मैंने आपको बताया जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल जाए वो होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब कि when you will get the solution of a pair of linear equation, so that system is known as consistent system. Okay, and the opposite side of this, when you will not get the solution of a pair of linear equation, then that system is known as inconsistent system. See, consistent and inconsistent. अब देखो, मान लो स्टूडेंट आपको मैंने बताया था सॉल्यूशन मिलता कैसे है, बताया था ना, जब भी हमारे पास दो लाइंस होती हैं या दो इक्वेशंस होते हैं तो आप उनका ग्राफ ड्रॉ करते हो, और जब ग्राफ ड्रॉ करते हो अगर वो दोनों लाइंस, आपको ही पता है कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और जब आपको सोल्यूशन फाइंड करना होता है तो आपको दोनों लाइंस के बीच का कॉमन पॉइंट देखना होता है कि हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स दे हैव। ओके, मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइंस, बताया था ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो अपने आप को एक पॉइंट पर कट करें, मतलब कि दे बोथ हैव वन कॉमन पॉइंट। ओके, तो अगर एक कॉमन पॉइंट होगा इसका मतलब उस लीनियर इक्वेशन का कितना सोल्यूशन होगा, एक, जितने कॉमन पॉइंट्स उतने उसके सोल्यूशन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, सो इट मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव वन सोल्यूशन, and one solution is also known as unique solution. Okay, सेकेंड केस मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन,
और आपको ही पता है कि पैरेलल लाइन डोंट इंटरसेक्ट। इफ दे विल डोंट इंटरसेक्ट इट मीन्स दैट they don't have any common points. Are you getting? We all know that parallel lines have don't any common points. So अगर common point ही नहीं होगा तो उसका कोई solution होगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि पैरेलल लाइंस हमेशा क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइन के केस में हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। थर्ड केस मैंने आपको बताया था कोइंसिडेंस लाइंस, एंड व्हाट वाज द कोइंसिडेंस लाइंस, व्हेन each point of one line coincide with the each point of the second line. It means in coincidence lines there have infinite common points. So अगर infinite common points होंगे तो कितने solution भी होंगे, infinite. So उसी को consistent और inconsistent में divide किया गया है। consistent में वो आते हैं जिनमें कुछ ना कुछ solution मिलता है, और इनकंसिस्टेंट में वो आते हैं जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, कंसिस्टेंट में कौन कौन सी लाइन आ सकती है, कंसिस्टेंट में आ सकती है कौन कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और कौन सी आ सकती हैं, कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस लाइंस। क्योंकि कंसिस्टेंट में मतलब कि हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन से भी एक पॉइंट कॉमन होता है तो सॉल्यूशन मिलेगा, और कोइंसिडेंस लाइंस में इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन मिलते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो, आपको ही पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर होंगी तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, वन सोल्यूशन। हाउ मेनी सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन होगा, ठीक है। ये डायग्राम आप बना लेना कॉपी में एज इट इज। आफ्टर दैट जो कोइंसिडेंस लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स, वो कैसी होती हैं, वो सुपर इम्पोजिंग लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं, सुपर इम्पोजिंग। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आप याद रखना कि कोइंसिडेंस लाइंस आर आल्सो नोन एज सुपर इम्पोजिंग लाइंस। और अगर सुपर इम्पोजिंग लाइंस है तो उनके सारे पॉइंट्स आपस में कॉमन हो जाएंगे। तो आपको ही पता है एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो इसका मतलब यहां से कितना सोल्यूशन मिला आपको, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। एक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन में क्यों मिला था, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही पॉइंट कॉमन होता है। दैट्स व्हाई इन इंटरसेक्टिंग लाइंस वी गॉट ओनली वन सॉल्यूशन। कोइंसिडेंस लाइंस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्यों मिले थे, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, आप दो इक्वेशंस को देख के ही पहचान सकते हो कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है। सी, चेक करने का तरीका क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो अगर ऐसा है तो आप पता कर लोगे कि वो कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट में कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन, और उस केस में जो लाइंस का नेचर होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोइंसिडेंस लाइंस के केस में क्या करोगे आप, कोइंसिडेंस लाइंस का जो कंडीशन होता है वो ये होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। अब आप ये पूछोगे सर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, तो आपको क्वेश्चन में कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा, कोई भी इक्वेशन दिया होगा, उसको आप जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लोगे, और जब जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1 है, और क्वेश्चन में जो होगा उससे करस्पॉन्डिंग आप लिख देना। तो a1 a2 x के कोएफिशिएंट है, b1 b2 y के कोएफिशिएंट है,
और C1 C2 कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म इसलिए है क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये है कंडीशन चेक करने की कि कब यूनिक सोल्यूशन होता है, कब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है और कब नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये तो आपका ये तो आपका कंसिस्टेंट का हो गया। वन सोल्यूशन को स्टूडेंट क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है स्टूडेंट। अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा तो यूनिक सोल्यूशन। अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होगा तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। इसी तरह हम आगे का चीज कंटिन्यू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, बाय दिस you can check out what are consistent systems. Inconsistent, intersecting and coincidence lines are there, and when you have to check either it is one solution or infinite many solutions, so conditions are given here. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the pair of linear equations will be have unique solution, and when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, so the pair of linear equation have infinite many solutions. Okay, now the second thing is inconsistent system. What are inconsistent system? I told you in the starting also, when you will get not any of the solution of the pair of linear equation, so that system is known as inconsistent system. इसका ये मतलब हुआ कि जब आपको लीनियर इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन ना मिले तो उस केस को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और आपको मैंने बताया था कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। ओके, सो अगर दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स दैट दे हैव नॉट एनी कॉमन पॉइंट्स, एंड व्हेन दे हैव नॉट एनी कॉमन पॉइंट्स इट मीन्स दैट दे हैव नो सॉल्यूशंस। सो इनकंसिस्टेंट में किस तरह की लाइंस आएंगी? आपकी पैरेलल लाइंस। ओके, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और ये पैरेलल लाइंस ही जो हैं वो क्या बनाती हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, और पैरेलल लाइंस के केस में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। ओके, सो इन दिस केस यू विल राइट in parallel lines we will get no solution, क्योंकि कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं। जब कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और इसको कैसे चेक करते हैं? इसका भी कंडीशन है क्या कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ठीक है, सो ये हो गया पैरेलल लाइंस का कंडीशन, और पैरेलल लाइंस के केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं बनता है। तो इसी पूरे डायग्राम को बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये डायग्राम आप अच्छे से याद कर लो, ये बहुत हेल्प करेगा, और इसमें से 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, सो नोट डाउन दिस फुल डायग्राम। देखो, अगर आप चेक करते हो दो लाइंस को कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट के अंदर वन सोल्यूशन भी आता है और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन भी आता है। तो अगर वन सोल्यूशन भी आएगा तो कंसिस्टेंट होगा, अगर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन भी आएगा तो भी कंसिस्टेंट होगा। दोनों में से कुछ भी आ गया अगर तो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं आ गया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये कंडीशंस याद करनी है, तो मैं एक बार फिर से इसको एक जगह लिख देता हूं। ठीक है, इसका कंडीशन कि आपको याद कैसे रहेगा। ठीक है, याद कैसे रहेगा तो आपको कैसे लिखना है अपनी कॉपी में? सी लाइक दिस, व्हेन, ऐसे लिख लेना याद करने के लिए, व्हेन a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो इस केस में क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं और वन सोल्यूशन भी बोलते हैं। और ये ऐसी लाइंस का नेचर कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस।
लाइंस का नेचर है कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरा, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, और ये कैसी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंस लाइंस। और लास्ट में अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसमें हमको क्या मिलती है, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा इसमें आपको। और ये कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये आपको याद करना है सारी चीजें। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों टुगेदर मिलकर क्या बनते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बनते हैं, कंसिस्टेंट। और ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में यूनिक और इनफाइनाइट दोनों आता है, और इनकंसिस्टेंट में केवल नो सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखो स्टूडेंट, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। देखो, कभी भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होता है, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, तो उसके दो मेथड होते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द फर्स्ट मेथड इज the graphical method. By the help of graph you can find it the solution of pair of linear equations. And the second method is that algebraic method. ठीक है, what is the second method, algebraic method. And in that algebraic method there are many methods to solve a pair of linear equations. So first we will study the graphical method to find the solution of pair of लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द solution of pair of linear equations। ठीक है, अब ध्यान दो, सोल्यूशन मतलब क्या, जिसमें हमको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाए। और स्टूडेंट, आपके पास जब दो इक्वेशन होगा तो आप उसको देख के पहचान जाओगे ना कि कौन सा इंटरसेक्टिंग होगा, कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा कोइंसिडेंस होगा। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन है, बाय दैट कंडीशन यू कैन चेक इट। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, हम क्या करते हैं, दोनों लाइंस का, जो भी दोनों इक्वेशंस दी होती हैं उनका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और अगर दोनों का ग्राफ क्या करे, आपस में इंटरसेक्ट करे, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, मान लो एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो यहाँ पे कट की ना, तो जिस पॉइंट पे कट करेगी वही पॉइंट उन दोनों इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। क्योंकि ये पॉइंट एक पहले इक्वेशन पे भी है और यही पॉइंट दूसरे इक्वेशन पर भी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं आपको। सी, एग्जाम्पल नंबर 4 है,
आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, क्या लिखा है, एग्जाम्पल है ये, चेक graphically whether the pair of equation x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12 is consistent। ठीक है, if so then solve them graphically। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर चेक करिए कि क्या ये पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, क्योंकि एक बात बताओ, सोल्यूशन हमको उसी का मिलता है जो सिस्टम क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। मैंने अभी बताया आपको, इनकंसिस्टेंट में तो कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, सोल्यूशन केवल उसी में मिलता है जो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। तो पहले तो ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो कंसिस्टेंट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो एक बात बताओ स्टूडेंट, आप ये नोट कर लेना, अपने बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। आप दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, अगर मैंने दोनों इक्वेशन को इस टाइप का लिखूं ऐसे कि x प्लस 3 जब ले आया, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड क्या होता है, जनरल फॉर्म में 0। ठीक है, तो मैंने उसको जनरल फॉर्म की तरह कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन को 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको भी कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको किससे कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म से। तो क्या लिखेंगे, कंपेयर these equations with जनरल फॉर्म। ओके, तो जनरल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट हम लोगों का, जनरल फॉर्म ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पहले वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करो और दूसरे वाले इक्वेशन को सेकंड वाले से कंपेयर करो। तो जब कंपेयर करोगे आप, तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, तो यानी कि a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1 है, तो b1 की वैल्यू क्या आ गई, 3। सिमिलरली यहाँ पे -6 है और यहाँ पे प्लस c1 है, तो माइनस साइन के साथ लेंगे तो c1 इक्वल टू -6। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -12। ठीक है, अब आप क्या करो, a1/a2, b1/b2, c1/c2 का रेशियो निकाल लो। तो जब रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, a1/a2 क्या आया स्टूडेंट, 1/2 आया। सिमिलरली b1/b2 क्या आएगा, 3/-3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -1। और c1/c2 जो है वो क्या आ जाएगा, -6/-12 यानी कि 1/2 आया। तो सारे रेशियोज हमको मिल गए ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले a1/a2 को b1/b2 से चेक करो कि क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया हो, ये एग्जांपल नंबर 4 है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिख लेना स्टूडेंट। तो मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लेना, मैं इरेज कर रहा हूं। तो आप ये देखो,
पहले हम इन दोनों को चेक करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तब आगे बढ़ेंगे, इक्वल नहीं होंगे तो वहीं स्टॉप कर देंगे। तो देखो a1/a2 1/2 आया है, b1/b2 -1। तो आप देख रहे हो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब यही दोनों इक्वल नहीं आए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, अगर इक्वल आएंगे तब तीसरे को कंपेयर करना, अगर इक्वल नहीं आए तो वहीं स्टॉप कर देना। तो देखो यहीं पे ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, और ये किसका कंडीशन होता है, कंसिस्टेंट का ही ना, ये कंसिस्टेंट का कंडीशन होता है, ये कंसिस्टेंट सिस्टम हुआ, कंसिस्टेंट, ठीक है। और कंसिस्टेंट में भी ये कौन सा है, कंसिस्टेंट में भी ये यूनिक सोल्यूशन है। तो आप यहां लिखोगे सो इट विल हैव यूनिक सोल्यूशन, मतलब कि केवल एक ही सोल्यूशन मिलेगा हमको। तो कंसिस्टेंट तो है तो लिख दोगे यस कंसिस्टेंट है, यस इट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंट है तब इसका सोल्यूशन निकालना है। अगर मान लो इनकंसिस्टेंट होता तो सोल्यूशन ही नहीं मिलता। तो हमने जब सॉल्व किया तो हमें कंसिस्टेंट मिल गया, अब हम आगे का प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। और ये कैसी लाइंस होगी स्टूडेंट, जब हमें एक सोल्यूशन मिलता है तो वो कैसी लाइंस होती हैं, वो होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है ग्राफ की मदद से, ठीक है। तो देखो हमारा इक्वेशन क्या था स्टूडेंट, हमारा इक्वेशन क्या था, पहला जो इक्वेशन था वो था x माइनस 3y इक्वल टू 6, यही था ना पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 था कि नहीं। अब हम लोग को इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। पहला क्या बताना था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट था, तो जब कंसिस्टेंट था तो सोल्यूशन ही मिलेगा इसका। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को लिख लिए। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाना मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो फॉर x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसका ग्राफ बनाना है तो 2 पॉइंट चाहिए हम लोगों को। तो जब 2 पॉइंट चाहिए तो एक पॉइंट x एक्सिस पे निकालते हैं और दूसरा पॉइंट y एक्सिस पे निकालते हैं। तो देखो फॉर ऑन x एक्सिस y क्या होता है 0, तो जब y 0 हुआ और y इसमें पुट करोगे तो x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, सो x माइनस 0 इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6। तो यानी कि x एक्सिस से पॉइंट आ गया, सो ऑन x एक्सिस क्या पॉइंट होगा 6,0। ऐसे ही ऑन y एक्सिस निकाल लेते हैं। तो y एक्सिस पे क्या होता है x इक्वल टू 0, तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो पुट करोगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, सो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, सो माइनस 3y इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू -2 आएगा। सॉल्व कर लेना -2 ही आएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0, -2। अब इसी का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ लाइन ऐसे ड्रॉ करो अपने ग्राफ में, ठीक है। यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, ये x एक्सिस था, ये x डैश। इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये तो हमारा ओरिजिन होता है। इसी तरह ये y एक्सिस है तो 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब देखो 6,0 x एक्सिस पे है तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, यहाँ लिख दो 6,0, ठीक है। और 0, -2 यहाँ पर आएगा y एक्सिस पे, तो 0, -2। अब इन्हीं दोनों को आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे ऐसे करके, लंबा आगे पीछे बढ़ा देना ताकि आपको पता चले, ठीक है। अब जो काम इक्वेशन फर्स्ट के लिए किया है
अब यहाँ लिख दो, इसको ऐसे एरो लगा के लिख दो, ये कौन सा इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब सेम चीज किसके लिए करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप, आप पहले भी करते आ रहे हो। अब आप किसके लिए करोगे, मैं इरेज कर दे रहा हूं इसको क्योंकि इजी है। अब आप करोगे क्योंकि स्पेस नहीं है स्टूडेंट, इसलिए मुझे इरेज करना पड़ रहा है, अदरवाइज आई विल नॉट इरेज इट। ठीक है, 2 माइनस 3y इक्वल टू 12। अगेन 2 पॉइंट इसका भी निकाल लेते हैं। तो ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, तो वो पुट करोगे इसमें, तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो 2x इक्वल टू 12 क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12/2 यानी कितना आया 6। तो पॉइंट क्या आ जाएगा 6,0। ऐसे ही ऑन y एक्सिस पे तो इक्वेशन था 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, क्योंकि y एक्सिस पे क्या 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ। तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, सो माइनस 3y इक्वल टू 12, सो y इक्वल टू -4। सॉल्व करना आ जाएगा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 0, -4। अब इसके भी 2 पॉइंट्स मिल गए हम लोगों को, मिले कि नहीं, जैसे पहले क्वेश्चंस के मिले थे वैसे इसके मिल गए। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट कर दो, तो 6,0 देखो फिर से यहीं पर आ गया 6,0। ठीक है, और 0, -4 यहां पर आएगा, 0, -4 यहां पर आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट को फिर से ज्वाइन करोगे, ऐसे, तो देख रहे हो ये दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रही है ना। जब आप ड्रॉ, देखो मेरी लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है, आप ड्रॉ करोगे तो आपसे सीधे बनेगी, स्केल से करना आप तो सीधे बनेगी। तो देख रहे होगे ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, और वो पॉइंट कौन सा था 6,0, क्योंकि 6,0 पहले वाले इक्वेशन में भी था, 6,0 दूसरे वाले इक्वेशन में भी था। तो यानी कि दोनों इक्वेशन एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो जिस भी कॉमन पॉइंट पे कट कर रही होंगी वही इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो कॉमन पॉइंट क्या मिला आपको, यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या मिला आपको, कॉमन पॉइंट मिला 6,0। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 6,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब आप 2 लाइन को ड्रॉ करोगे ग्राफ पे, तो जिस भी पॉइंट पे दोनों कट करेंगे आप वो पॉइंट ग्राफ में देख लेना, और वही पॉइंट उन दोनों इक्वेशंस का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों वही पॉइंट दोनों में क्या होगा कॉमन। और मैंने आपको बताया था जो पॉइंट कॉमन होता है वही क्या होता है सॉल्यूशन। तो इन दोनों लाइंस में 6,0 कॉमन था। अब मान लो कॉमन नहीं भी होता तो कहीं ना कहीं तो कट करती ना, तो जिस पॉइंट पे कट करती वही उसका क्या हो जाता सॉल्यूशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 6,0। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ऐसे ही आपके पास कितना भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, पहले आप ये चेक कर लोगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तीनों कंडीशन बेटा याद कर लेना आप लोग। ऑल ऑफ यू हैव टू लर्न these formulas, okay, otherwise you will be in trouble, okay, so memorize all these formula, it will help you. So tomorrow we will discuss exercise 3.2. आप स्टूडेंट एक काम करना, आप ट्राई करना एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, आपसे हो जाएगा। आप इक्वेशंस फॉर्म करना, और कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे भी है जिसमें ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। तो अगर कंसिस्टेंट होंगे तो कंसिस्टेंट में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो यूनिक सोल्यूशन का होगा या वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का होगा। तो उसके बाद आप उसका ग्राफ ड्रॉ करके जिस भी पॉइंट पे कॉमन मिलेगा
जो भी पॉइंट कॉमन होगा दोनों में वही उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट एंड द लास्ट थिंग दैट graphical method to find the pair of linear equations. So till then, have a nice day, take care and study well. Okay, thank you.